that why, despite different government agencies cracking down upon terrorist groups and outfits, they have still been unable to reduce terrorism. Societies that have industrialized do not tend to take up radicalism at the drop of a hat, where money and technology are the deciding gods. Conventional religion takes a backseat. Proper industrialization always makes way for urbanization. Large number of people mix with each other. Society वाला ट्राइबलिज्म है ये. अगर कोई ट्राइबल रिलीजन को कोऑप्ट कर लेते हैं, यू गेट अ लार्ज नंबर ऑफ बैकवर्ड लुकिंग पीपल. इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है? जेन्युइन कैरियर ऑप्शंस होता है, वन दैट यू कैन कैरी फॉरवर्ड, प्लेंटी ऑफ देम. Jai Guru to all you Heartlanders, welcome to Heartland Diary. Ajay, tell me, have any one of you ever wondered that why, despite different government agencies cracking down upon terrorist groups and outfits, they have still been unable to reduce terrorism? Why does putting a bunch of terrorists in jail does not seem to solve the problem? There are many more people that join different terror outfits despite all this punishment. You know, you're jailing people. In extreme cases, you're hanging people. On top of that, there are in these encounters with the different security outfits where so many people die. But this does not seem to deter people from still joining radical outfits and terrorist outfits. You see, the issue lies in the mindset. और ये mindset जो है, ये है result of कुछ societal movements या तो lack of societal movements. और मैं क्या करूँगा इस वीडियो में, to the best of my ability, try to point out towards one such societal movement in this video. ओके, ये रिक्वेस्ट वीडियो है और बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट वीडियो है. इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इतना कुछ हम लोग कर रहे हैं, फिर भी हम लोग टेररिज्म को या रेडिकलिज्म को स्टेम नहीं कर पा रहे हैं. देयर इज अ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन अबाउट व्हाट इज इट दैट वी आर मिसिंग. हम लोग कौन सा चीज़ है जो मिस कर रहे हैं. तो ये वीडियो शायद हेल्प करेंगे वो समझने के लिए. और मुझे ये लगता है टिल द टाइम वी रियलाइज व्हाट वी आर मिसिंग, and मिसिंग कंप्लीटली, हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए थैंक्स टू वन ऑफ यू हार्टलैंडर्स जिसने ये रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो करने के लिए. और ये वीडियो का टॉपिक उन्होंने भी बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया था कि सर आप एक वीडियो करो जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी और रिजल्टेंट रिडक्शन इन रिलीजियस वायलेंस ऑफ दैट सोसाइटी को कोरिलेट कर सकते हो. दिस वीडियो इज अ रिजल्ट ऑफ दैट. बात ऐसा है कि येस, सोसाइटीज दैट हैव इंडस्ट्रियलाइज्ड do not tend to take up radicalism at the drop of a hat. कुछ भी हुआ चलो बंदूक लेके निकल पड़ते हैं, नहीं करते हैं. So मैंने क्या किया, I've made a 8 to 10 point summary from the real world. ये कोई खास बात नहीं है. फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो आप किसी भी कोने में जाके इत्मीनान से बैठेंगे, आधा घंटा सोचेंगे तो आपके दिमाग में भी ये 8-10 पॉइंट आ जाएंगे. So I've just made it a kind of a summarized version of this 8 to 10 points ताकि आप शेयर कर सकते हो. और समराइज वर्जन ऑफ 8 to 10 पॉइंट्स की वाई जिस सोसाइटी पूरा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है, सोसाइटीज लाइक जापान और कोरिया आर लेस इंक्लाइंड टू सिट अराउंड एंड प्लॉट होली वॉर्स एंड जिहाद्स एंड क्रूसेड एक्सेट्रा, स्पेशली व्हेन contrasted with pre-industrial societies like a Pakistan or like a Yemen. So we would try to understand that by understanding differentiating features कि क्या है जापान कोरिया में, differentiating features क्या है जो कि पाकिस्तान या यमन में नहीं है. तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड टेल मी इफ़ यू लाइक इट. लीव ए कमेंट फॉर बेटर रीच, शेयर विद इन योर नेटवर्क, help build awareness. In fact, मेरे को तो लगता है you can take this up as high as you want because there seems to be a certain amount of lack of understanding in the higher levels also. Please excuse my language. And those watching HA for the first time, Heartland Diary for the first time, please consider subscribing to the channel क्योंकि we are trying to reach our next milestone which is of 2000 subscribers and your subscription to the channel could be a lot of help, right, in helping us reach that 2000 magic number. Okay, what are those 8 to 10 points that are there in industrial societies जो कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में नहीं है, जिसके कारण इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रेडिकलिज्म कम होते हैं और प्री इंडस्ट्रियल में ज़्यादा होते हैं. पॉइंट नंबर 1, कैश ओवर क्रीड. इंडस्ट्रियल प्लेसेस जो होता है ना, दे प्रायोरिटाइज मनी एंड टेक्नोलॉजी. आप जर्मनी का वोक्सवैगन सोचिए, साउथ कोरिया का सैमसंग सोचिए, जापान का सोनी सोचिए. ये ना लिटरल एक एम्पायर्स है इन देयर ओन राइट. दे आर एम्पायर्स एंड इन दिस काइंड ऑफ एम्पायर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड वेयर मनी एंड टेक्नोलॉजी आर द डिसाइडिंग गॉड्स, conventional religion takes a back seat.
लेकिन इसके कंपैरिजन में आप पैस्टोरल सोमालिया में कहीं पे चले जाइए, जहाँ पे पैस्टोरल नोमैडिक एग्रेरियन एक इकोनॉमी है, क्लैंस और लाइफ स्टॉक के ऊपर अपना लाइफ पूरा डिपेंड करते हैं, वहाँ पे देखेंगे कि अल शबाब थ्राइव्स ऑन रिक्रूटमेंट, थ्राइव्स ऑन प्रॉमिसिंग डिवाइन ग्लोरी, जो इस दुनिया में नहीं मिल रहा है अगले दुनिया में आपको दिला देंगे, एंड थिंग्स लाइक दैट। पॉइंट नंबर 2, सिटीज़ में रहेंगे तो ट्राइब और ट्राइबल एफिलिएशंस कम हो जाते हैं। प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होते हैं, प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज मेक्स वे फॉर अर्बनाइजेशन। लार्ज नंबर ऑफ पीपल मूव इन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल मिक्स विद ईच अदर, उन लोग का आइडियाज़ का क्लैशिंग होता है, और यहाँ पे ये लोग ये सीखते हैं कि अपना जो जितना भी रिजिड बिलीव्स है इसको थोड़ा सा छोड़ दे, थोड़ा सा लर्न टू लूज इन योर रिजिड बिलीव्स। अ वेरी गुड प्लेस इज इस्तांबुल, जहाँ पे अभी वो एर्दोगान का प्रॉब्लम चल रहा है। इट्स अ मुस्लिम प्लेस, बट इज इट अ रिक्रूटमेंट पैराडाइज फॉर अलकायदा? इज इट अ रिक्रूटमेंट पैराडाइज फॉर आइसिस? नो, वहाँ से रिक्रूटमेंट कुछ नहीं होता है। कंपेयर दैट टू अ कांदाहार इन अफगानिस्तान, तालिबान स्ट्रॉन्ग होल्ड, और मे बी सम रन डाउन विलेज इन नाइजेरिया जहाँ पे बोको हराम इज द बॉस। सो आपको पता चल जाएगा कि वो रन डाउन विलेज या कांदाहार या एक साइड में और एक साइड में इस्तांबुल इन तुर्की, विच इज़ द बेटर रिक्रूटमेंट जोन फॉर टेररिस्ट एंड फॉर रेडिकल्स। पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन जो होता है दैट शिफ्ट्स द फोकस। Industrial societies push schools, they push science. Think of the United States, of France, of Israel, churning out engineers, turning out doctors, churning out technicians. So one is less likely to buy into an apocalyptic sermons in this kind of a setup. उसके साथ में आप फरीदकोट को कंपेयर करो, जहाँ से अजमल कसाब था। रूरल एरिया, madrasas pumping out kids who have their holy book memorized and nothing else. ये जितने भी बच्चा निकल रहे हैं मदरसे से, व्हाट इज देयर नेट यूटिलिटी अदर देन बीइंग फिदाइंस, अदर देन बीइंग सुसाइड बॉम्बर्स, अदर देन एनलार्जिंग द एन आर्मी ऑफ रेडिकल्स? ये लोग का नेट यूटिलिटी तो कुछ नहीं है सोसाइटी में। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर होता है तो फ्यूडलिज्म जिंदा रहता है। पैस्ट्रल सोसाइटीज़ में क्या होता है, दे ऑफ्टन रन ऑन हायरार्कीज। इसमें अच्छा खराब का बात नहीं है, वो सोसाइटी में शायद दैट इज़ व्हाट वाज रिक्वायर्ड, दैट इज़ व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट केप्ट दोस सोसाइटीज अलाइव। तो वहाँ पे फ्यूडल हायरार्कीज होता है, लॉर्ड्स एंड शेख्स एंड वॉर लॉर्ड्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, एंड दे कॉल द शॉट्स। जमींदार, जागीरदार बोलते हैं, दे कॉल द शॉट्स। इफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इनकम्प्लीट, if industrialization is improper, like in Egypt, like in Saudi Arabia, like in Qatar, you would have ideas like Wahhabism taking roots. You would have groups like Muslim Brotherhood being sheltered and being nurtured. सऊदी अरेबिया में या कतर में या बहरीन में इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है। क्यों? दिस आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सऊदी अरेबिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जितना भी हुआ है, या दुबई का जितना भी हुआ है, एक्सपर्ट्स जाके किए हैं, बाहर से लोग जाके किए हैं। So you have the American engineer and the European engineer जो concept design बना रहा है, you have the Indian worker or the Filipino worker or Sri Lankan worker जो जाके बना रहा है। लोकल पॉपुलेशन जो एमिराती का क्या है, एमिराती लोग का कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा भी गवर्नमेंट का इधर उधर का डिपार्टमेंट में बैठ जाते हैं, बट व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन? नथिंग मच। टिल द टाइम यू फिजिकली एंड मेंटली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अ सोसाइटी, आपके दिमाग में भी वो चेंजेस नहीं आएंगे। उसको लेके थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। सो दीज आर इम्प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़। इसीलिए आप देखेंगे कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया बोलिए या कतर बोलिए, यहाँ पे फ्यूडलिज्म अभी भी जिंदा है। पॉइंट नंबर 5, जॉब्स, नौकरी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज गिव राइज टू प्रोडक्टिव इकोनॉमी। Factories, offices, small offices, big offices, businesses, other forms of livelihood. Great example is the town from where I am. Durgapur used to be a small town. It's still a small town in West Bengal. Primary वहाँ पे इकोनॉमी कौन चलाता था? दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट को बेस करके वी हैड अ टाउनशिप जहाँ पे 1000 लोग रहते थे। टाउनशिप को बेस करके देयर वर सेवरल मार्केट्स, सेक्टर मार्केट्स, डी सेक्टर मार्केट, देयर वाज अ ह्यूज मार्केट कॉल्ड मीनाचिटी मार्केट, देयर वाज अ स्टील मार्केट। सो उस मार्केट में ट्रेडर्स डिपेंडेंट ऑन पीपल जो टाउनशिप में रहते हैं। टाउनशिप के लोग क्या करते हैं? दुर्गापुर स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं। आसपास के जितना भी गांव है वहाँ का जो कोई आपका गार्डन साफ करने के लिए आ रहा है, या कोई आपको दूध बेचने के लिए आ रहा है, सब, या कोई आपके घर में हाउस होल्ड
मेड के काम करने के लिए आ रहा है, दे आर ऑल कमिंग टू योर हाउस. सो वन स्टील प्लांट इज बिल्डिंग अप एन एंटायर एलाइड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. तो industrial societies give rise to productive economy, factories, jobs, small business, हजार forms of other livelihoods. These things keep people occupied. In places like, let's say, North Africa, Mali, जहाँ पे pastoral life पूरा dominate करता है, एक बंदा, एक बच्चा, एक young person जिसका no prospect, who is going to join Boko Haram or Ansar Din to feel like they matter, to feel like their contribution matters, and also get a source of income. बिकॉज आज के दिन में टेररिस्ट आउटफिट तो इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, इट्स एन एम्प्लॉयमेंट, नौकरी है. आईसिस वाला फाइटर्स को हर महीने में दे वर गेटिंग $500 आई बिलीव, और $100 और समथिंग लाइक दैट एवरी मंथ. सो दीज आर एम्प्लॉयमेंट. सो जहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल जॉब्स सोसाइटी में, जहाँ पे आपको बोनाफाइड लेजिट जॉब्स नहीं मिलेंगे, अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आपको इलेजिटिमेट जॉब्स मिलेंगे, ऐसे जॉब्स मिलेंगे. पॉइंट नंबर 6 इज प्रोग्रेस टुवर्ड्स फॉरवर्ड मूवमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड मोबिलिटी. Industrial societies worship innovation. Pre-industrial societies, वो पुराना tradition, they cling to old tradition. The more tribal their identity, the more their obsession with keeping it alive. और ये tribalism, जो society वाला tribalism है, ये अगर कोई tribal religion को co-opt कर लेते हैं, कि सोसाइटी में ट्राइबलिज्म प्रमोट करते हैं, एक ऐसा रिलीजन आ गया जो ट्राइबलिज्म प्रमोट करते हैं, दोनों इकट्ठा हो गया, दोनों को ऑप्ट कर लिए, देन यू गेट अ लार्ज नंबर ऑफ बैकवर्ड लुकिंग पीपल हु ऑब्सेस विद मीडिएवल कैलिफेट एंड मीडिएवल थिंग्स लाइक दैट. पॉइंट नंबर 7, इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज हैव स्पेस फॉर डिबेट्स. जैसे मैंने एक पॉइंट पे पहले बोला था कि व्हेन यू मूव इनटू टाउन, आपका आइडियाज का जो रिजिडिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप अलग अलग आइडिया से क्लैश करते हो. तो तब आपको पता लगता है कि चलो यार, अपना जो रिजिडिटी है उसको थोड़ा सा लूजन अप करें तो अच्छा है. सो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी में क्या है, कम्युनिकेशन ओपन्स अप, पीपल क्वेश्चन स्टफ, और लोगों का ये क्वेश्चन करना को क्रिटिसाइज नहीं किया जाता है. So in a place like, a very good example, I have been there, I have walked there, in a place like an industrial Malaysia, blanket extremism struggles to dominate. Malaysia is an Islamic society. I'll take the example of Kuala Lumpur. Kuala Lumpur is so thoroughly urbanized, and Kuala Lumpur is so thoroughly, जिसको हम लोग बोलते हैं cosmopolitan, अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप्स के आदमी रहते हैं. यहाँ पे there is a very low chance of blanket extremism, कि पूरा कुआलालंपुर एकदम खतरनाक एक्सट्रीमिस्ट हो गया, हर किसी को देखो, हर कोई एकदम अपना खून अपना दिमाग में लेके घूम रहा है, ऐसा आपको नहीं मिलेंगे. कंपेयर दैट विद अ प्लेस लाइक अ पाकिस्तान, वेयर देयर इज नो इन्फॉर्मेशन डाउनलोडिंग एंड नो इन्फॉर्मेशन एसिमिलेशन, नो स्पेस फॉर डिबेट, एंड यू हैव पाकिस्तान तालिबान, अफगान तालिबान, ये वो जैश ए मोहम्मद, पता नहीं लश्कर तोयबा, इट्स अ रिक्रूटमेंट paradise basically, and it has been like that for the past 50-60 years. Point number 8, career option and generational security. Industrial society में क्या होता है, genuine career options होता है, one that you can carry forward, plenty of them. Okay, so I'm not saying कि daddy का नौकरी आपको मिल जाएंगे, but if your daddy sets up, then there is a chance that you get a good exposure. So what is happening is, this is a bona fide setting up which is happening. You get a good exposure and you build better than what your dad built in terms of career. But in feudal non-industrial zone, fighting is the only gig. सोमालिया में अल शबाब को देखो, अफगानिस्तान में तालिबान को देखो. इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या होता है, लेस डेस्परेशन होते हैं, मेरे पास ऑप्शंस रहते हैं. प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऑप्शंस नहीं रहते हैं. एंड यू डोंट हैव एन ऑप्शन. इफ ज्वाइनिंग अ टेरर आउटफिट इज योर ओनली ऑप्शन, यू डू दैट. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सेलियंट फीचर. जैसे मैंने बोला था कि आप एक कोने में बैठेंगे, 15-20 मिनट के लिए बैठेंगे, यू प्रॉब्ली कैन समराइज ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स, और इसमें हो सकता है आप यहाँ पे एक और 2 पॉइंट आप ज़्यादा जोड़ सकते हो इसमें, दैट एनी वन कैन थिंक ऑफ. द क्वेश्चन इज, नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. द क्वेश्चन इज, ये जो अंदर में व्हाट चेंजेस व्हेन अ प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी मूव्स इनटू बीइंग एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्या चेंज होता है. देयर आर 2 फंडामेंटल चेंजेस जो मेरे ख्याल में, जो मेरे दिमाग में आता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल्स के साथ, पर्सनल एग्जाम्पल से मैं शेयर करूंगा. माई डैड्स एग्जाम्पल एंड माई एग्जाम्पल. यू सी, माई फादर रीच्ड दुर्गापुर बैक इन द 60s, okay, to work in Durgapur steel plant.
My daddy ka only connect with his roots was his elder brother, my Tau, who was already employed in the Durgapur steel plant. And he was a very senior officer and he was trained directly by the Brits, जो दुर्गापुर स्टील प्लांट को बनाया था. Because he was a very senior officer, he remained very busy. So the only example that remained in front of my dad was that, अपना भाई को देख रहा है and देख रहा है अपना भाई is so busy and the fact that वो इतना busy है, इतना successful है, so the only example in front of my dad was to work hard and to leave the rest to his luck. With the free time that he had, he slowly got introduced to the community club, to the community center. He formed his own peer group where among other things he picked up gardening, he picked up bodybuilding. Alright. So a guy who goes from his college, my dad went to a college in Burdwan, a guy who is fresh out of his college, no exposure, no nothing, goes to a town, understands the life that is there, he understands what his brother is doing, he understands that like the way my brother has his own circle, I similarly have to create my own circle. उसका अपना community center में जाके वो अपना circle बनाता है, वहाँ पे उसको 2 बॉडी बिल्डर मिलते हैं, 2 गार्डनर मिलते हैं, वो अपना फ्री टाइम में वो शुरू करते हैं. This is how his social life began shaping up. Inside the steel plant, as far as his professional life was concerned, it was a different kind of a environment. यहाँ पे a worker's economic background, social background, tribal background, community status ये नहीं मैटर करता था, क्योंकि एक वर्कर वहाँ पे एक वर्कर है. And my dad was a worker. My Tau was an officer. My dad joined as a steel plant worker. My dad's co-workers जो उनके साथ काम करते थे, they came from different stratas of different parts of the country actually. So somebody has come from Orissa who is probably the only child of a once upon a time very rich landlord. Somebody has come from Jharkhand, he is a simple graduate. Somebody is a plain migrant who has come from somewhere in West Bengal, came in search of a better life, recruitment हो रहा था, then those days recruitment was also easy, join कर लिया. लेकिन एक चीज कॉमन था इसमें, all of these guys were first generation settlers. फर्स्ट जनरेशन, वो खुद आया है, उससे पहले किसी ने नहीं आया, उसके फैमिली में किसी ने नहीं आया. फर्स्ट जनरेशन सेटलर्स इन एन इंडस्ट्रियल टाउन. और ये टाउन जो है, विच इज अगेन टोटली बेस्ड ऑन स्टील प्लांट, is a town that valued your contribution to the vision that the steel plant was aiming to build. The vision that B.C. Roy had when the steel plant was created. The vision that that point in time industrial India was trying to have. So town में आपका जो value है, that was आपका contribution क्या है towards the vision that the steel plant was trying to build. So then, conceptually, these were the children of rootedness and tradition. किसी के पिताजी ज़मींदार है, किसी के पिताजी लैंडेड, बहुत सारे ज़मीन है, ओके. सो डिफरेंट बैकग्राउंड्स, किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन वो भी उसका रूट है ना. मेरे पास कुछ नहीं है, वो भी मेरा रूट है, वो भी मेरा ट्रेडिशन है. दीज पीपल वर द चिल्ड्रन ऑफ ट्रेडिशन. बट जब इंडस्ट्रियल टाउन में आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन लूजनड देयर टाइज टू देयर लैंड, लूजन देयर टाइज टू देयर पास्ट, लूजन देयर टाइज टू देयर रूट्स. कमिंग बैक टू व्हेन वी वर बॉर्न. When we were born and we went to school, the next feature, the first feature, if you remember the first feature that I said is the cultural detachment. That was the first feature. So my cultural detachment was something that our parents went through when they came to an industrial setup. The second feature came into being when we were growing up. So the second feature was insulation. When we went to school, the landlord's grandson, मतलब जो लैंडलॉर्ड जिसका बेटा काम करने के लिए आया था डैडी के साथ, मेरा पिताजी के साथ जो काम कर रहा था, उसका बेटा हुआ है, तो वो लैंडलॉर्ड का ग्रैंडसन हो रहा है. सो द लैंडलॉर्ड ग्रैंडसन, द लैंडलेस रूरल विलेजर जो था उसका ग्रैंडसन, एंड माई ग्रैंडफादर्स ग्रैंडसन विच इज मी. ओके, माई ग्रैंडफादर बाय द वे ही वॉज एन अकाउंटेंट फॉर द महाराजा ऑफ शोआ बाजार राजबारी इन कलकत्ता. So वो अकाउंटेंट, राजबारी का अकाउंटेंट का ग्रैंडसन विच इज मी. We all went to the same school. Again, so the school becomes your identity. That was an unseen equalizer.
When we were growing up as child, we had precious little idea. ज़्यादा आइडिया नहीं था कि अपना एंसेस्टर्स का क्या लाइफ था, हाउ देयर लाइफ्स वेर इम्पैक्टेड बाय हु दे वेर, व्हाट दे डिड, एटसेट्रा एटसेट्रा. अपना आइडेंटिटी कैसे तैयार हुआ? वॉट एवर आर स्कूल्स, वॉट एवर आर एकेडमिक रिजल्ट्स, वॉट एवर आर टाउनशिप कम्युनिटी कम्युनिकेटेड, वॉट एवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स टॉट अस, they became the first cornerstone of our life view and our world view. Your school, your teachers, the way you are being brought up, your community life, your results, whatever little you learned from the libraries, that became the cornerstone of your life view. That became the decider of who you were. This would change a lot in life. I mean, absolutely goes without saying. Lekin there is no denying the fact that how you grow up becomes your base. And the second generation of industrialization, which is us, we grew up radically different from what our grandfather, what our grandparents or even our parents. Parents का भी तो अलग था ना. Parents तो 25 years के उम्र में टाउनशिप में आए. उससे पहले तो they growing up was different. So our grandparents growing up was different. Our parents growing up was different. Our growing up was absolutely different. Because we were born in industrialization. Right? And it was not just, a self-sufficient township या community that was the result of an industrial society that reflected on us. It was also those basic 8-9 points जो मैंने कवर किया, जो मैंने बोला कि आप आधा घंटा बैठो तो आपके भी दिमाग में आ जाएगा. वो 8-9 पॉइंट भी हम लोग के ऊपर एक मेजर रोल प्ले किया. That applied to us in our thought process, in our attitude, in everything. So this in a way is the insulation that I mentioned, which is the second feature of industrialization. और इसी के कारण industrialization is called a revolution, क्योंकि ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो कि फंडामेंटली लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ चेंज कर देते हैं. मतलब एक डायरेक्शन में जा रहे थे, कंप्लीट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे. मतलब जा रहे थे लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कंप्लीट दूसरा डायरेक्शन में ही लोग चलने लगते हैं. अब हिसाब करके अगर देखेंगे इन टर्म्स ऑफ इयर्स, द फर्स्ट कंप्लीट चेंज टुक जस्ट 1 जनरेशन, 30 to 40 years. एग्जाम्पल क्यों मैं बता रहा हूँ? लेट्स सपोज माई डैड केम टू दुर्गापुर व्हेन ही वाज 25 years old. लेट्स अज्यूम आई वाज बॉर्न व्हेन ही वाज 35. सो डैड के 10 साल दुर्गापुर में रहने के बाद आई वाज बॉर्न. व्हेन आई रीच्ड 20 he was 55. So which means 10 साल दुर्गापुर में रहना और मेरा 20 साल, पैदा होने के बाद 20 साल. So that's like 30 years. So that is one generation, 30 to 35 years, या 40 years भी पकड़ के चलो. So 30 to 40 years is one generation, and it took one generation to completely change the family line's way of thinking. Now imagine a Russia or a Europe or an America, societies that were industrialized out and out over a period of 150 years. ये 30 साल का बात मैं कर रहा हूँ. 30 साल में इतना चेंज हो रहा है. Now we are talking about 150 or more years, which practically means that these societies had at least 3 से 4 generation जो कि ये लोग का प्री इंडस्ट्रियल पास्ट से इसको सेपरेट करके रखे हैं. 150 years में कम से कम 3 से 4 जनरेशन हो गए जो प्री इंडस्ट्रियल पास्ट से इसको सेपरेट करके रखे हैं. So a society that enjoys an exposure of 120 to 150 years of industrialization actually gets truly and organically industrialized across every plane, every corner, every nook and cranny. And they can actually put their pre-industrial past behind permanently. अब यहाँ पे एक important point ये आ जाता है कि India was never truly industrialized. There were some small pockets like Durgapur or Jamshedpur where they started. लेकिन ये खत्म, मतलब ये स्टॉल भी हो गया. विद द एक्सेप्शन ऑफ जमशेदपुर, आई थिंक जमशेदपुर इज स्टिल डूइंग गुड, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन गॉट हॉल्टेड. इवन इन दुर्गापुर पोस्ट 90s इंडस्ट्रियलाइजेशन गॉट हॉल्टेड. So industrialization in India remains an incomplete exercise. So you had Vilai and Rourkela and Bokaro and a couple of other steel cities like Jamshedpur and all, and couple of other cities जहाँ पे फैक्ट्री को और बेस करके those cities grew up, towns grew up. वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत industrialization मिले होंगे, but across the rest of the country industrialization remains an incomplete exercise. And so India largely remains a pre-industrial society. और ये जो contradiction हम लोग देखते हैं, we see all around us. These are the examples. ये जो Lamborghini के साथ जो बुलक कार चलते हैं,
इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड. फोटो हम लोग दिखाते हैं, एफबी में शेयर करते हैं, बट इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ कंप्लीट इंडस्ट्रियलाइजेशन. फिर द टेरिबल हाइजीन ऑफ पब्लिक स्पेसेस, द एब्सोल्यूट लैक ऑफ सिविक सेंस, द लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब मेरा नहीं है, मतलब किसी का भी नहीं है, ऐसे टाइप का थिंग है. पब्लिक प्रॉपर्टी इसको हम लोग कभी नहीं ये अपना है सोचते हैं. वी डोंट हैव अ ओनरशिप ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, सो वी naturally tend to be very indifferent, very least bothered towards public property. Destroy भी public property बहुत जल्दी और सबसे पहले होता है. These whole host of societal behaviors can be ascribed to lack of industrialization, lack of an industrial mindset, so to see. और ये बिहेवियर आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान में मिलेंगे, ये बिहेवियर आपको कोरिया सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेंगे. ये बिहेवियर आपको अभी इंग्लैंड में मिल रहा है. क्यों? आज से 50 साल पहले नहीं था, अब मिल रहा है. क्यों? क्योंकि होल लोड्स ऑफ मिडिल ईस्टर्न पीपल एंड नॉर्थ अफ्रीकन पीपल हैव मूव्ड इनटू इंग्लैंड. देयर ओनली ऑक्यूपेशन इज प्रॉब्ली डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टीज. प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. So this is a very pre-industrial behavior. This is a behavior which is like characteristic of pre-industrial society. Unfortunately, India में भी बहुत देखने को मिलते हैं, which is the result of what I was saying कि society पूरा industrial नहीं हुआ है. Now, before parting, we come to the last tricky question कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज भी तो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं जो टेररिस्ट है. यहाँ पे आई एम एक्टिंग एज माई ओन डेविल्स एडवोकेट. ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में नहीं होता है. डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेररिस्ट तो होते हैं. हैवंट वी सीन देम ऑलरेडी? ऑफ कोर्स वी हैव. सो लेट अस ट्राई टू एग्जामिन दैट. सबको पता है डेटा इज नॉट हाइडिंग इन सम शैडोई कॉर्नर्स. 9/11 का हाईजैकर जो था मोहम्मद अटा, ही वाज एन अर्बन प्लानिंग गाय फ्रॉम कायरो. बिन लादेन वाज अ सिविल इंजीनियर. Many of the ISIS recruits are doctors and techies and so on and so forth. India has several recorded doctors and engineers who have pledged allegiance to terrorist outfit. So, चक्कर क्या है? Is the process of industrialization एक तरह से अच्छा कर रहा है, दूसरी तरह से it is screwing us sideways? ऐसा है क्या? No, unfiltered hit मैं दे रहा हूँ आपको. Engineering and medicine जो है ना, अगर अच्छा कॉलेज होता है, they don't train you just to think, they train you to obsess. Please understand, it's about the mindset. People who are good in this field are trained to dissect a problem and come with a solution. अगर ऐसे बंदे को you give that guy a cause, say a medieval death cult वाला आप एक cause दे दो, वो ना उसको साइड से नहीं छोड़ देते. He mainstreams it in his mind. So you cannot make the mistake of confusing him, with some idiot, with some illiterate radical who is looking to shoot people. He is not that. He is most of the time a very methodical predator who can turn an ideology into a flowchart. You want to build a bridge? Absolutely, let's build a bridge. You want to build a bomb? Why not? Let's build a bomb. Same skill set, different blueprint. You want to cure a patient? Great, let's go ahead and do it. You want to slaughter people? Just flip the switch from save to destroy. Good schools drill into you razor sharp focus, and it's not just engineering school or medical school. Any good school, it can be a primary school also. Good school का ये होता है कि आपको अच्छा बनाने के लिए they drill into you कि focus कैसे करना है. अब आप अगर उस focus को लेके if you let your dark side play with it, then you get this. However, having said all of that, these people are examples of exception of industrial societies. These are people, यहाँ पे क्या है ना, progress has rewired their mind probably, but it has not changed their pre-industrial soul. अगर ये pre-industrial soul एक death-loving cult है, then you have a problem of serious proportion in your hand. अगर ये pre-industrial soul है बोल के maybe your dark side comes into play, so you develop that razor-sharp mind and you let your dark side play with it and you become a doctor who's a terrorist or an engineer who's a terrorist. But as I said, these are exceptions out of millions of doctors that come out, engineers, few dozens ऐसे होते हैं. On the other hand, pre-industrial village में आप एक जाओ, आपको large number of easy recruit मिल जाएगा. Think of Africa, Pakistan, Afghanistan, Central Asia. So एक industrial society में हजारों, लाखों, करोड़ों engineers और doctors में आपको चंद मुट्ठी भर आपको मिलेंगे ऐसा लोग. लेकिन आप एक पाकिस्तान village में जाओ जो है लगभग 70% आपको मिल जाएगा. तो रिक्रूटमेंट का जहाँ तक सवाल है, these are very small, low recruitment figures, और वहाँ पे ज़्यादा रिक्रूटमेंट फिगर्स मिलते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बता रहा हूँ. ये
techies and engineers जो होते हैं, people who are inclined to become terrorists, these guys are very smart people. They have an amazing sense of self-preservation. They are mostly planners. They are not your average suicide bombers. They are very calculative. They are doing this because they have a ready supply of वो गांव से प्री इंडस्ट्रियल फैनेटिक्स आ रहे हैं मेरा आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए. वो बॉम्ब को स्ट्रैप करेगा और जाके खुद को उड़ा देगा. आप उससे ये फुट सोल्जर ले लो, ये खुद कभी नहीं जाएंगे. वो मोहम्मद आटा आपको मिलियंस में एक मिलेंगे. बिन लादेन तो इतना कुछ किया, खुद कितना टेररिस्ट बन के गया इधर उधर बम लगा के. सो दीज गाइज आर मोस्टली प्लानर्स. जब यूनाइटेड स्टेट्स उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था, कभी अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान ये सब कर रहा था. दीज गाइज हैव एन अमेजिंग सेंस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन. दे डोंट वांट टू गेट इनटू द फोर फ्रंट एंड टेक डायरेक्ट रिस्क. ये लोग का पूरा जो कंसेप्ट है, टेररिस्ट बनना है या रेडिकल बनना है, कुछ करना है, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट रिक्रूट्स दैट दे गेट. ये इलिटरेट रिक्रूट आप हटा दो वहां से, ये लोग दे आर गोइंग टू गो ऑफ. They are not going to burn bridges. They are not going to bomb people. They are not going to go and carry out an attack in Chhatrapati Shivaji terminus. They are too smart for that. So it is back again to the fact that it is the pre-industrial societies and the mass recruits from pre-industrial society that remain the true game changer. These guys don't. These guys are not the game changers. The industrial or post-industrial methodical predator, जो इसका बात कर रहा था, trained engineers and the doctors, methodical predators, he is nothing on his own. Cut off his supply, you cut off his political ambitions. So while mass riots and arsons and mob rage and destruction of public properties that we see all remain pre-industrial behavior, and they become essential security issues. While this lone wolf doctor and whatever engineer, these are basically psychopaths, a different kind of a psychopath, but these are psychopaths and these are criminals. So that is a security issue. A mass of pre-industrial illiterate mob is a security issue. This individual is a criminal issue. Both of these needs to be treated accordingly. I hope that by now you have, through this very basic presentation, come to realize that societies that have organically been exposed to industrialization for a period of at least 50 से 70 साल, 50 से 70 साल जो सोसाइटी ऑर्गेनिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये लोग बाय देयर नेचर लेस रेडिकल होते हैं, टॉलरेंस ज़्यादा होते हैं, डाइवर्सिटी को लेके ओके होते हैं, पसंद ना भी करे तो ओके होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होते हैं ये लोग के दिमाग में. एंड ऑल ऑफ देम आर मोर फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड अपवर्ड मोबिलिटी. ऑन द अदर हैंड सोसाइटीज़ जिसमें ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ है, दैट हैव नॉट अंडरगॉन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दे रिमेन द एग्जैक्ट ऑपोजिट. स्टैग्नेंट हो जाते हैं, ट्राइबल हो जाते हैं, प्रेडेटरी हो जाते हैं. ओके और ये लोग का जो बिकॉज इंडस्ट्रियलाइज नहीं होंगे तो पॉवर्टी तो नहीं जाएंगे. ये तो अभी दुनिया का नियम है. इफ़ यू वांट टू रिमूव पॉवर्टी यू हैव टू इंडस्ट्रियलाइज. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है मतलब पॉवर्टी भी है. प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पॉवर्टी बिकम्स अ पार्ट एंड पार्सल. तो पॉवर्टी को फाइट करने के लिए ऑफन टाइम्स कभी रिलीजियस ट्राइबलिज्म, कभी रिलीजियस फैनेटिसिज्म, कभी इधर कभी उधर, ये सब में ये लोग शेल्टर लेते हैं जहाँ से ये लोग को पैसा या सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मिलता है. ओके सो आई होप दिस इज गुड इनफ टू वेट योर एपेटाइट. क्यूरियस हार्टलैंडर्स, यू कैन बिगिन योर प्रोसेस ऑफ डिगिंग. डिग करते रहो, ढूंढते रहो, पढ़ते रहो टू अंडरस्टैंड मोर. I'll be back with another topic. Meanwhile, you all stay sharp and stay smart, and I'll see you soon. Jai Guru.